कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और लता जी को हम सब 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ओम शांति शांति। ये जिंदगी है, ये रुकती नहीं। ग्रेट शोमैन कह गए हैं कि द शो मस्ट गो ऑन, तो हमारा भी शो आगे बढ़ेगा तमाम दुश्वारियों के बीच। लोकमत समूह के मातृ संस्करण नागपुर की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत के हिंदुत्व और राष्ट्रीय एकात्मता विषय पर होने वाले व्याख्यान पर उपस्थित स्वयं आदरणीय डॉक्टर मोहन जी भागवत और आप सभी सम्मानीय अतिथियों का मैं मतीन खान हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं दुनिया भर से फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ रहे हमारे सारे दर्शकों का भी कि वह इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं और मोहन भागवत जी डॉक्टर साहब की जो लोकप्रियता है उसको देखते हुए सारे विश्व में उनको लोग इस माध्यम से जुड़कर देख रहे हैं। यूं तो लोकमत का इतिहास जो है वो 100 साल से भी अधिक का है। 1918 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उस समय के नायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने लोकमत को उसको नाम दिया था और विभिन्न संघर्षों के बाद 15 दिसंबर 1971 को लोकमत के पितृपुरुष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री जवाहरलाल दर्डा जी ने इस बीज को नागपुर से बोया और नागपुर में दैनिक लोकमत को स्थापित किया। क्योंकि आज़ादी के बाद ऐसी कई समस्याएं थी जो तोप की तरह मुंह खोले खड़ी थी, तो बाबूजी ने यह सोचा कि खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो उन्होंने ये सोच के लोकमत की स्थापना की और लोकमत आज नागपुर में 50 साल की उम्र ले चुका है और इस उम्र के लिए एक छोटी सी एवी है जिसमें कुछ झलकियां हैं लोकमत के इस यात्रा की। मैं गुजारिश करूंगा कि एवी दिखाई जाए। लोकमत मीडिया ग्रुप started in the independence era. Shri Jawaharlal Dada, a freedom fighter, is the founder of the current Lokmat Media Group. Rooted in nationalism, the name Lokmat was given by none other than great freedom fighter Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. Lokmat Media Group have stayed relevant to readers and partners with print, television, digital, an experiential marketing division for solutions and IPs, which has created Lokmat Maharashtrian of the Year. हार मानतो की मला एवढा मान दिला आणि इतकी इज्जत दिली. Lokmat Parliamentary Awards, Lokmat Maharashtra's most stylish, Lokmat Infra Conclave, World Orange Festival, Sarpanch Awards, Surajyotsna National Music Awards. The major achievement of the group is its flagship newspaper, Lokmat Marathi Daily, which has been Maharashtra's #1 newspaper since 3 decades. The industry has made this leadership credible, and Lokmat is not only the #1 in Maharashtra, but also the #1 in Pune and the #1 Marathi Daily in India. Lokmat has created news and columns that are inspiring and engaging.
12 editions and with over 3,000 reporters and 57 hyperlocal editions, Lokmat stays connected with readers and their issues. Covers 45 districts across Maharashtra, Goa, Gujarat, MP, Chhattisgarh, Telangana and Karnataka and reaches over 16 lakh homes daily. From Sarpanch to parliamentarians, from youngsters to women, from Yavatmal to Delhi, Lokmat Media Group has created its own journey. We feel proud that we could gain the confidence of our readers, and we could gain their confidence because we fought for their issues. We tried to fulfill their aspirations. We are always with them. Its impactful print-led movements has helped Lokmat to win over the hearts in Maharashtra. हम सब मिलकर महाराष्ट्र को जल समृद्ध बना सकते Lokmat's popular program of inculcating reading amongst the children in Maharashtra has helped it to stay connected with the larger school program called Sanskarache Moti, connecting with 3 million students across a period of 6 months year after year. Not only that, at the end of the program, about 40 children get a rare chance of meeting parliamentarians or the president or PMO in Delhi. Through our impactful initiatives, we strive to empower across various segments of Maharashtra. प्रत्येक सखीच्या सुप्त कलागुणांना वाव सखी मंच देते आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी अशासारखे सुद्धा प्रोग्राम इथे घेतले जातात. हर लड़की को धाकड़ होने की जरूरत है. मग हा शब्दप्रयोग कमकुवत असणे, दुर्बल असणे या अर्थाचा कसा काय झाला? मी हातात बांगड्या भरल्या. To create world records. To conserve, Lokmat has set up green printing press with the best world-class technology and infrastructure. Lokmat Group successfully commissioned the 2.4 megawatt solar power across 10 plants in Maharashtra. Solar installations are called Lokmat Green Energy Parks. देशामधलं हे पहिलं वृत्तपत्र आहे. याचा आपल्यालाही अभिमान वाटेल की आपल्या इथलं वृत्तपत्र देशाचं पहिलं वृत्तपत्र आहे की जो ग्रीन आहे. Lokmat has raised a voice towards every natural calamity or act of injustice that has happened in India in any part of the country. As our founder said, think national, act local. We believe in it, and that helps us stay rooted and yet move along. जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा. ये 50 साल सिर्फ एक मील का पत्थर है जो लोकमत की यात्रा की एक छोटी सी झलक है. ये यात्रा जारी है, जारी रहेगी, निरंतर जारी रहेगी. आइए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं. डॉक्टर मोहन जी भागवत के आगमन के साथ ही वैसे तो ये पूरा हॉल प्रकाशमान हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो दीप अभी जले नहीं हैं वो भी उनके कर कमलों से प्रकाशमान हो. मैं चाहूँगा कि वे दीप प्रज्वलन के लिए पधारें. उनके साथ मैं बुला रहा हूँ लोकमत ग्रुप के चेयरमैन एवं पूर्व सांसद
बहुत स्वागत फिर से। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि लोकमत की स्वर्ण जयंती महोत्सव, जिसे हम कलम की आज़ादी का महोत्सव भी कह सकते हैं, उसमें डॉक्टर मोहन जी भागवत जैसी शख्सियत, उन जैसा ओजस्वी व्यक्तित्व पधारा है, वो है हम सबके बीच हैं। लेकिन जिनकी वजह से ये कार्यक्रम संभव हो सका, आप सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से किस तरह से हम कोरोना के कांटों के बीच जी रहे हैं। वो कांटों से खींच के किस तरह उन्होंने आंचल निकाला और इस कार्यक्रम को कामयाब किया। वो हमेशा हम सबको एक ही बात कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलना चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आदरणीय विजय दर्डा जी के ये हमेशा हम सबको यही हो रहती है सलाह कि आग जलती रहना चाहिए और जिंदगी चलती रहना चाहिए। तो स्वागत भाषण के लिए मैं उन्हें ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूं। श्री विजय दर्डा जी, आप सबके बीच में एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत मुश्किल से और उन्हीं के प्रयासों से यह कार्यक्रम संभव हो पाया है। यहां पर उपस्थित राष्ट्रीय सेवा संघ के सरसंघ चालक आदरणीय श्री मोहन भागवत जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मान्यवर बहनों और भाइयों, लोकमत लाइव के माध्यम से इस कार्यक्रम को कवर कर रहे सभी पत्रकार मित्रों और लोकमत परिवार के मेरे साथी, मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं। कल हम सब ने मां सरस्वती की पूजा की थी और आज सुरों की सरस्वती सदा के लिए हम सबको अलविदा कह गई। आज हम सभी का दिल सिसक रहा है, मन शांत है। हम सब की प्रिय लता दीदी हमारे बीच में नहीं है। ऐसा कोई शब्द नहीं जो सही मानों में लता दीदी के प्रति आदरांजलि अर्पित कर सके। शब्द भी कमजोर पड़ रहे हैं, मगर ये विधि का विधान है। वे स्वर्ग से आई थी और स्वर्ग लौट गई, मगर वे सदा अमर रहेगी, हमारे जहन में रहेगी, हमारे दिलो दिमाग में रहेगी। आइए हम सब लोग मिलकर उनको शाब्दिक आदरांजलि अर्पित करते। अभी हम सब लोगों ने उन्हें आदरांजलि अर्पित की थी। मेरे बाबूजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री जवाहरलाल जी दर्डा ने लोकमत के रूप में जो बीज बोया था वह वटवृक्ष बन गया है। लोकमत का स्वर्ण जयंती वर्ष हम लोग 2023 तक मनाएंगे और इस स्वर्ण जयंती महोत्सव के निमित्त वर्ष भर हम कई कार्यक्रमों को आयोजित करेंगे। हिंदुत्व और राष्ट्रीय एकता विषय पर आदरणीय मोहन भागवत जी का ये व्याख्यान इन्हीं कार्यक्रम की श्रृंखला का एक हिस्सा है। इससे पहले हमने इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें आप आपके व्यस्तता के कारण पधार नहीं पाए थे, किंतु आपका संदेश
हम सब लोगों ने सुना था। उसमें श्री श्री रविशंकर जी पधारे थे, बाबा रामदेव जी थे, जैन धर्म के आचार्य लोकेश मुनि जी थे, अजमेर शरीफ के हाजी सैयद सलमान चिश्ती साहब थे, आचार्य बिशप कार्डिनल ओसवाल ग्रेसियस, जीवन विद्या मिशन के प्रहलाद वामन राव पै, लद्दाख और धर्मशाला से महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय तप साधना केंद्र के संस्थापक भिखु संघसेना और स्वामीनारायण संस्था के ब्रह्म बिहार जी ने भी भाग लिया था। स्वर्ण जयंती की इस तहत हमने रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया था और जिसमें हजारों बहनों ने एक साथ बढ़कर एक रंगोली बनाकर एक उसमें से संदेश दिया था। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि बहनें इस प्रकार से रंगोली का दर्शन करवाकर एक उसमें से संदेश भी दे सकती है। उसका भी हम लोगों ने संकलन किया, जो अगले 50 साल के लिए हमारी पूंजी होगी। लोकमत केवल एक मीडिया समूह नहीं है, बल्कि सामाजिक सरोकार से परिपूर्ण परिवार है। नागपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हमने एक उद्घोष की स्पर्धा की थी और उस स्पर्धा के अंदर जाने माने लोगों ने भी भाग लिया था और उसमें से जो घोष वाक्य सामने आया है, देश की शान नागपुर मेरी जान। जैसे कि हम लोग अमेरिका में जाते तो देखते कि आई लव न्यूयॉर्क, पेरिस के अंदर हम जाते तो देखते कि नेवर स्लीप्स। उसी प्रकार से देश की शान नागपुर मेरी जान, और इसी थीम पर हमने एक थीम सॉन्ग भी बनाया है जो आने वाले समय में हम हमारे यहाँ के महापौर को सादर समर्पित करेंगे, क्योंकि वे नागपुर की शान है और नागपुर के वो प्रथम नागरिक होने के नाते वो सबके गार्डियन भी है। इस सॉन्ग को गीतकार प्रशांत इंगोले ने लिखा है, मशहूर गायक शंकर महादेवन ने गाया है और अजिंक्य सोनटक्के ने इसको कंपोज किया है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि ये भी दिखाने के बाद में कई चीज़ें ऐसी जो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, किंतु लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए सरपंच, विधिमंडल और पार्लियामेंट, ये तीनों के लिए लोकमत ने विशेष पुरस्कार रखे और जिसके वजह से उनकी काबिलियत और उनका जो पार्टिसिपेशन है वो करने वालों के लिए उनकी एक चयन समिति भी अलग है और हम लोग उसको हर वर्ष अवार्ड देते हैं। उसमें लोकमत सरपंच अवार्ड है, लोकमत विधिमंडल अवार्ड है और लोकमत सांसदीय अवार्ड भी प्रदान करते हैं। हम प्रतिवर्ष वुमेन समिट का भी आयोजन करते हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्त करने वाली महिलाओं को हम लोकमत पुरस्कार से नवाजते हैं, या फिर जहां भी आपदा आई हो, चाहे वो बिहार में आया हुआ भूकंप हो या कारगिल के अंदर हुई क्षति हो, वहां पर हम उनके परिवार के लिए, उनके परिवारजनों के लिए तत्पर रहते हैं, स्कूल बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं और उनके प्रति हम सजग रहते हैं। मित्रों, आज की शाम बहुत महत्वपूर्ण शाम है। आज हमारे साथ आदरणीय मोहन जी भागवत यहां उपस्थित है। उनका व्यक्तिमत्व वाकई अनोखा है। शिखर पर होने के बावजूद भी वे सहजता और सरलता से प्रेरणादायी है। वे आम आदमी के करीब हैं और यही कारण है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ के उन्होंने एक अलग पहचान बना दी है, उसको लोगों को के करीब लाया है। संघ में बहुत से बदलाव उन्होंने किए हैं, यहाँ तक कि वेशभूषा की भी उन्होंने बदलाव किए।
सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे संघ के आलोचकों का भी सम्मान करते हैं। एक बात, और सिर्फ सम्मान ही नहीं करते, उसको धैर्य से भी सुनते हैं। जब मैं श्री प्रणब मुखर्जी से वे संघ के कार्यक्रम के लिए नागपुर आ रहे थे, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि आप नागपुर संघ कार्यक्रम में जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं जा रहा हूं। आपको कोई आपत्ति है? मैंने, नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति कैसे हो सकती है? उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मुझे बुलाया तो मैं जाऊंगा। अपने घोर विरोधियों को भी आमंत्रित करने की शक्ति वही व्यक्ति जुटा सकता है जिसमें गहरी समझ और गहरे विचार की शक्ति हो। मित्रों, जब हम कोविड के कारण अपने घरों में बैठे थे, तब मोहन जी देश में भ्रमण कर रहे थे। मैं अभी भागवत जी से पूछ रहा था कि आपकी लोक संख्या कितनी है। ओके, मैं तो एग्जैक्टली नहीं, मगर करीब 1.5 लाख लोग होंगे हमारे। 60 लाख लोग एक सूर में, एक ताल में, एक विचार से प्रेरित होकर काम करते हैं। एक अनोखी बात है। हम ये भी देखते हैं कि हमारे विचारों की मत भिन्नता भी होती है। आपके विचार अलग है, मेरे विचार अलग है। हम दो अलग अलग ध्रुव हैं, मगर उसके बावजूद भी ये लोकमत सबका है। मेरे बाबूजी ने एक बार मुझसे कहा था कि विजय, जिस कुर्सी पे तुम बैठ रहे हो, एक बात ख्याल रखना, जो एडिट पेज है उसके केवल और केवल तुम हकदार हो। बाकी सारे जो पन्ने हैं वे पाठकों के हैं और वो पाठकों को ही समर्पित रहना चाहिए। हम खबरें देते वक्त में भागवत जी ये भेदभाव नहीं करते, कदापि भेदभाव नहीं करते। हम ये खबरों पे पाठकों का अधिकार है। कल मैं अगर आपकी बात छुपा दूं तो मेरे पाठक कहां पढ़ेंगे? पढ़ने से विचार का परिवर्तन नहीं होता है। और इसीलिए बड़ा भूचाल आ गया जब लोकमत ने 50 यहां होर्डिंग लगाए। यहां पर एडवर्टीजमेंट छपी लोकमत के सारे संस्करणों में। तो मेरे बेटे ने फोन करके मुझे कहा विदेश से कि डैडी, ये सिर्फ नागपुर एडिशन में क्यों छपे? ये तो सारे एडिशन में छपना चाहिए। वो सारे एडिशन में छपे। फिर ऋषि ने फोन किया और कहा कि डैडी, ये तो दिल्ली और गोवा के एडिशन नजर नहीं आ रहा है। मतलब उसमें भी हम दे देते हैं। जिस दिन से एक आपकी ये चित्र छपे उसमें, उस दिन से मेरे विचार बदल गए। मेरी हालत ऐसी होगी कि फोन पे लगातार लोग, कोई मुझे कोस रहे थे, कोई मुझे गाली दे रहे थे, कोई कह रहे थे कि तुम बदल चुके हो, इतने दिन तुमने ये किया, इतने दिन तुमने वो किया। मुझे समझ में नहीं आता ये असहिष्णुता की मनुष्य के जीवन में कैसी आ सकती है। रादर मैं तो ये कहूंगा कि भागवत जी ने बड़ा दिल दिखाकर वो इस मंच पर आए। उन्होंने भी इस स्तंभ का आदर किया। एक संस्था 50 साल तक काम करती है
और काम करने के बाद में लोगों के दिलो दिमाग में वो बस जाती है। वो कई दिन ये कहा गया कि ये कांग्रेस का अखबार है, ये भी कहा गया कि हाँ मारवाड़ियाचा वृत्तपत्र है। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, इसके नाम पर, उस पर के नाम से काम नहीं होता है। जब तक आप लोगों के दिल को छू नहीं लेते हो तब तक कोई अखबार नहीं पढ़ता है, और वो भी पैसे देके नहीं पढ़ता है। मुझे एक दिन का किस्सा याद है कि सुमति ताई सुखड़कर यहां पर आई हुई थी और उन्होंने अपने बहू से कहा कि आपला वृत्तपत्र आण, तो वो लोकमत लेके आई। अरे म्हणे आपलं तरुण भारत, नाही म्हणे आता घरामध्ये थोडं लोकमत आम्ही वाचतो। देखिए अखबार ये सबका होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, उसके अंदर अलग अलग विषय उसका भी होना चाहिए, और वो निर्भीड़ होना चाहिए, बिना हिचक होना चाहिए, और सर्वसमावेशक होना चाहिए। और इसीलिए बिना संकोच हमने आपको बुलाया है, आदर पूर्वक बुलाया है, सोच समझ कर बुलाया हमने। हमें वो बात है, हम इस तिरंगा में विश्वास करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं, हम एकता में विश्वास करते हैं, हम सेक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं। ये हमारा धर्म है और इस धर्म को हम लोग निभाते और निभाते रहेंगे। आदरणीय मोहन भागवत जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक का आप नेतृत्व कर रहे हैं, जो संस्था केवल विचारों से देश में काम कर रही नहीं, तो गांव, कस्बे, शहर, यहां तक कि 7 समंदर के पार भी आपके लोग काम कर रहे हैं। मैं स्विट्जरलैंड में था वहां पर, और जब स्विट्जरलैंड के अंदर मैं वहां पर था तो मेरे एक मित्र मुझे कहा कि भाई यहाँ पर वहां पर एक जगह है, वहां पर आपका सम्मेलन हो रहा, चलेंगे क्या वहां पर? मैंने कहा कि मैं जरूर आता हूं, मगर मेरी इसी समय में दूसरी अपॉइंटमेंट होने से मैं नहीं आ पा रहा हूं। तो मैंने देखा कि आपके लोग विदेशों में भी काफी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। वे अपने विचारों के हैं, वे अपने विचारों से उसका फैलाव भी करते हैं। मगर ये जो सब करते हैं उस समय में वे अपने विचारों के प्रति दृढ़ता, निस्वार्थ लगन, त्याग और समर्पण के साथ में करते हैं। विचारों के प्रति दृढ़ता का शब्द मैंने इसलिए प्रयोग किया है कि वे राष्ट्र के हित में काम करते हैं। संघ से जुड़े और भी संगठन हैं जिसके माध्यम से वे विविध अंगों में अपना काम करते हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा के ज्यादातर नेतृत्वकर्ता ये आरएसएस से आए और वो आरएसएस में विश्वास करते हैं। मुझे एक ने पूछा कि आपने आदरणीय मोहन भागवत जी को व्याख्यान रखा है यहाँ पर, उसमें आपका विज्ञापन भी मैंने देखा और उसमें लिखा है कि विषय क्या है, तो हिंदुत्व और हिंदुत्व के साथ में राष्ट्रीय एकात्मता। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताइए आप किस हिंदुत्व की बात कर रहे हो? संघ के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं या वीर सावरकर जी जिन्होंने सबसे पहले हिंदुत्व शब्द का प्रयोग किया था उनकी बात कर रहे हैं, या आप बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, या राहुल गांधी जी के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं आप? किसका हिंदुत्व सबसे अच्छा है? उन सज्जन ने मुझे एक अमेरिका का भी उदाहरण दिया और उन्होंने कहा है कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने, उनके बयानों की उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि वह असली हिंदू है
मगर आज हिंदुस्तान के अंदर जो जिस हिंदुत्व की बात हो रही है उससे वे अलग है। मैं तो जवाब नहीं दे सका उनको, मगर मुझे विश्वास है कि श्री मोहन भागवत जी के व्याख्यान में शायद हमें उस प्रश्न का उत्तर मिले। कुछ लोगों ने मुझसे यह भी कहा कि सनातन धर्म परंपरा को एक साथ में लेकर चलने की परंपरा है। हिंदू कभी हमलावर नहीं रहे, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दुनिया को दिया, लेकिन आज असहिष्णुता के आरोप लग रहे हैं। क्या हिंदुत्व की शैली बदल रही है? आखिर प्रेम से एकता आएगी या फिर दमन से? क्या अपने विचारों को दूसरों पर थोपना उचित है? और क्या इससे राष्ट्रीय एकता स्थापित होगी? क्या इससे राष्ट्र मजबूत बनेगा? ऐसे अनेक प्रश्न पूछ रहे थे। एक सज्जन का तो सवाल बिल्कुल सीधा था कि भागवत जी से पूछिएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब स्थापना हुई उस समय से ही वे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते आए हैं। उन्होंने निश्चय समाज में गहरी पैठ बनाई है, राम मंदिर का वादा पूरा किया है, कश्मीर की धारा 370 भी। क्या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना भी पूरी हो जाएगी? यदि हां, तो इस दिशा में संघ की यात्रा किस पड़ाव पर है आज? और अगर आज भी आप इस विचार पे पक्के इरादे, पक्के और विचार रखते हैं, तो क्या ये राष्ट्र एक रहेगा? आजादी की लड़ाई लड़ने वाला कांग्रेस पक्ष और उनके सभी नेता, गांधी जी से लगा के नेहरू जी तक और सुभाष बाबू तक और वल्लभ भाई पटेल तक, को भी अलग अलग ढंग से बांट दिया गया है। क्या यह नीति राष्ट्र हित में है या पार्टी के हित में है? यह भी वो मुझसे कहते कि हम जानना चाहते हैं। बनारस विश्वविद्यालय और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने हिंदुज्म पर पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स शुरू किया है। और एक प्रोफेसर मुझे बता रहे थे कि उसमें जैनिज्म और सिखिज्म दोनों को ही हिंदू धर्म का हिस्सा बताया है। जाति और वर्ण व्यवस्था को उचित ठहराया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में भी हिंदुज्म के कोर्स प्रारंभ करने की योजनाएं बनाई जा रही है। क्या यह हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है? या एक सज्जन मुझसे यह भी कहते हैं और पूछते हैं कि हिंदुत्व और राष्ट्रीय एकता की आप बात करने वाले हैं, तो बताइए कि दक्षिण भारत में हजारों मंदिर होने के बाद में वहां भगवा परचम क्यों नहीं लहराया है? वे आर्य और द्रविड़ की बातों को भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ हम विश्व शक्ति बनने की बात करते हैं, तो दूसरी ओर जाति, वर्ण और धर्म से उलझे हुए हैं हम। और धर्म के नाम पर जिन राष्ट्रों का निर्माण हुआ है, हमारे पड़ोसी राष्ट्रों का, तो उनकी दुर्गति भी हम देख रहे हैं। फिर राष्ट्र को धर्म की पहचान देने की बात क्यों की जा रही है? जहां तक हिंदुत्व और राष्ट्रीय एकता का सवाल है, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयं संघ और भाजपा के नेताओं के वक्तव्य सदैव होते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर कुछ लोगों की भाषा बहुत कठोर होती है। हरिद्वार के धर्म संसद में जो बातें की गई है, क्या उसे राष्ट्रीय एकता को क्षति नहीं पहुंचेगी? ऐसी उग्रता आखिर क्यों दिखाई देती है? लोगों ने यह भी सवाल पूछा है कि संघ ने धर्म संसद में किए गए उग्र भाषण की भत्सना क्यों नहीं की? एक सवाल और बड़ा इंटरेस्टिंग एक ने पूछा
प्रेम विवाद को लेकर भी प्रेमी अगर अलग अलग धर्म के हो तो उसे लव जिहाद कहा जाता है। कई राज्यों ने तो इस पर कानून भी बना दिए। क्या प्रेम से संस्कृति को ठेस पहुंचती है? संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर ने तो कहा था कि जाति हटाने का एक ही संकल्प है और वो है कि प्रेम विवाह होना चाहिए। और प्रेम करने वाले क्या जात पूछकर प्रेम करते हैं? ऐसा भी एक सवाल मुझसे पूछा गया। तो प्रेम तो इस प्रकार से ये ऑनर किलिंग नहीं है क्या, ये भी उन्होंने पूछा। और अंत में ऐसे बहुत सारे सवाल जो आम आदमी के मन में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। खैर, ये सवाल पूछने की बैठक नहीं है, बल्कि आदरणीय मोहन भागवत जी के विचार सुनने को हम एकत्रित हुए हैं। राष्ट्र सेवा में उनका वृद्ध अनुभव है, बारीक सारीक बातों पर उनकी अपनी दृष्टि होती है। संभव है कि उनके व्याख्यान में ये सारे सवाल समावित हो जाए। आदरणीय मोहन भागवत जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने अत्यंत व्यस्त आपके कार्यक्रम में हमारे लिए समय निकाला और देश के अंदर जो अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग विचार जो उमड़ रहे हैं उसका निराकरण करने का भी हमें आज मौका मिला है। आशा है आपके मार्गदर्शन से हम लोग लाभान्वित होंगे। तो आइए सुनते हैं आदरणीय मोहन भागवत जी को। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय बाबू। तालियां मुझे लगता है थोड़ी कम बजी, क्योंकि जिस तरीके की प्रस्तावना विजय बाबू ने दी है उसके लिए यकीनन उन्होंने कितने लोगों से बात की और कितने सवालों के जवाबों के बीच वो घिरे रहे, ये आप सबको अंदाजा हो गया होगा। उन्होंने वासुदेव कुटुंबकम की भी बात की। तो जी अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वासुदेव कुटुंबकम। तो जो छोटे दिल वाले होते हैं वही तेरा मेरा करते हैं, लेकिन हिंदुत्व में ये नहीं है। मैं आदरणीय मोहन जी भागवत को अपने उद्बोधन के लिए बुलाऊं, उसके पूर्व मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा परिचय मैं उनका आपके सामने प्रस्तुत करूं। सर, मुझे 1 मिनट का आप समय देंगे? जी। तो आज वो हमारे बीच में एक गुरु की भूमिका में है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुमय नमः। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। आप सब जानते हैं, उनके व्यक्तित्व से आप सब परिचित हैं कि वो एक बहुत उत्कृष्ट और ओजस्वी वक्ता हैं, अनुशासित हैं और कर्म और वचन के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन शायद आप लोगों में से कम लोग जानते हैं कि वह अपने जो जन्म का वर्ष है वो 2 और ऐसे लोगों के साथ साझा करते हैं जिन्हें हम सब बहुत प्यार करते हैं। एक तो आपके सामने ही मौजूद हैं डॉक्टर अपने श्री विजय दर्डा जी, और दूसरे हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो 1950 में मोहन भागवत जी का जन्म हुआ है और आपने कई संघर्ष देखे हैं, लेकिन आपने वेटरनरी में बीएससी किया, फिर एमबीएससी किया, मास्टर्स इन वेटरनरी साइंस, और 1 साल आपने सरकारी नौकरी भी की। मैं ऐसी चीज़ें आपको बता रहा हूँ शायद जो उनके व्यक्तित्व के बारे में लोगों को कम पता होंगी। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि उन्होंने जो अपना सफ़र किया है वो एक प्रचारक के रूप में अकोला नगर, ज़िला, प्रांत, क्षेत्र प्रचारक जैसा एक बढ़ता दायित्व यशस्वी कर 1986 में अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख बने। 1999 में अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख बने। वर्ष 2000 में वह सर कार्यवाहक चुने गए। 2000 से 2009 तक सर कार्यवाहक के दायित्व निर्वहन किया और 19 मार्च 2009 में सर संघ चालक का गुरुभार उनको सौंपा गया। आपको शायद कम ही लोगों को पता होगा कि बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं वो, और मैं उनको गुजारिश करता हूं कि वो अपना संबोधन दें। आप सबकी बहुत ज़ोरदार तालियां हैं, बहुत ज़ोरदार तालियां हैं। और एक चीज़ बस और बताऊंगा कि वो संघ के जो घोषवाद्य हैं उसको भी बजाने में निष्णात हैं। तो ये उनके व्यक्तित्व की वो चीज़ें हैं जो हम सब कम जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय श्री विजय बाबू दर्डा जी, मंचस्थ उपस्थित सभी मान्यवर और मेरे सामने उपस्थित और आभासी माध्यम से उपस्थित
सभी श्रोतागण, माता भगिनी, एक जो सुबह दुखद प्रसंग का समाचार हमको मिला, उसकी एक स्वाभाविक छाया अपने इस कार्यक्रम पर है। और आज जहां कहां लोग मिलते होंगे वो छाया वहां रहेगी, क्योंकि अपने स्वर के माध्यम से और उसके महत्व के चलते अपने नाम से भी आज के समय में लता जी का नाम और लता जी का स्वर भी संपूर्ण देश को जोड़ने वाला एक फैक्टर था। और इसलिए स्वाभाविक है जब उनका नाम लेते हैं तो सबको एक तो याद आता है, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। इसको सब लोग याद करते हैं। और आज अपने व्याख्यान का विषय भी है, सरहद पर मरने वाला हर वीर है भारतवासी। सरहद के अंदर जीने वाला हर वीर एक देश का वासी, एक समाज का अंग है कि नहीं है। और वैसा वो हो इसलिए क्या करना पड़ेगा। और चूंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, मुझे सरसंघ चालक बना दिया गया है, तो लोग स्वाभाविक प्रश्न करते हैं कि हिंदुत्व का इससे क्या संबंध है, हिंदुत्व इसमें साधक है कि बाधक है। और बहुत सारे प्रश्न विजय बाबू ने बताए। आज का भाषण में मैं प्रश्नों के उत्तर देने वाला नहीं हूं, क्योंकि प्रश्न का उत्तर प्रश्न पूछने वाला कौन है, क्यों पूछ रहा है, ये समझ के देना पड़ता है, तब उसका समाधान होता है। तो उसका एक अलग कार्यक्रम हो सकता है कभी न कभी। लेकिन हिंदुत्व और राष्ट्रीय एकात्मता इस विषय का प्रतिपादन करने के पहले मैं कुछ शब्दों का उच्चारण किस अर्थ में करता हूं वो स्पष्ट करना चाहता हूं। और पहला शब्द है हिंदुत्व। क्योंकि हिंदुत्व क्या है, और जो सारे प्रश्न आए उसमें हिंदुत्व क्या नहीं है वो ध्वनित हो रहा था। हिंदुत्व कोई इज्म नहीं है। हिंदुत्व का सीधा अंग्रेजी भाषांतर हिंदूनेस होता है। इज्म, अब उसका मूल अर्थ क्या है वगैरह पता नहीं, विद्वानों का विषय है। लेकिन उसका जो रूढ़ अर्थ है वो एक बंद बात रहती है, एक कल्पना रहती है। उस कल्पना को आपको साथ में रखना है, उसके साथ होना है, तो उस कल्पना के साथ आपको एडजस्ट होना पड़ता है। हिंदुत्व ऐसा नहीं है। हिंदुत्व को साथ रखने वाले, हिंदुत्व को मानने वाले हर व्यक्ति ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका विकास किया है और आज भी उनके द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर राधाकृष्ण इसके बारे में कहते हैं बहुत अच्छे शब्दों में। कैसा है हिंदुत्व? देयर हैज बीन नो सच थिंग एज ए यूनिफॉर्म स्टेशनरी अनअल्टरेबल हिंदुइज्म। अब उनके जमाने में हिंदुइज्म शब्द का ही प्रयोग होता था, लेकिन वास्तव में उनको कहना हिंदूनेस है, क्योंकि इज्म कोई है नहीं। यूनिफॉर्म स्टेशनरी अनअल्टरेबल कुछ नहीं है, और इज्म की ये सब प्रॉपर्टीज रूढ़ार्थ में है, वेदर इन पॉइंट ऑफ बिलीफ और प्रैक्टिस। हिंदुइज्म इज ए मूवमेंट, नॉट ए पोजिशन, a process, not a result, a growing tradition, not a fixed revelation. Its past history encourages us to believe that it will be found equal to any emergency that the future may throw up, whether in the field of thought or of history. अब ये वाक्य लिखने के पहले उन्होंने जो सारा पैराग्राफ लिखा है उसमें उन्होंने हिंदुत्व के इस नित्य परिवर्तनशील स्वरूप का एक आरेखन किया है प्राचीन समय से, वेद पूर्व काल से लेकर। तो और उसमें उन्होंने सबको लिया है। उसमें भगवान महावीर है, तथागत बुद्ध है, गुरु नानक जी है, कबीर है,
और आपकी जानकारी के लिए, सावरकर जी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका उच्चारण करने वाला पहला व्यक्ति नहीं है, पहला संगठन नहीं है। लोक भाषा में सबसे पहले गुरु नानक देव जी ने इसका उल्लेख किया है। उसके पहले रचे गए हमारे पुराणों में यानी बौद्धिक ग्रंथों में, इंटेलेक्चुअल्स में इसका उल्लेख मिलता है। तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। और उसके पहले कहा जाता है कि ये हमारा जो नाम था हिंदू, ये तो बाद में आया है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये रामायण में नहीं है, महाभारत में नहीं है, वेदों में तो नहीं है। कुछ लोग उसके भी प्रमाण देते कि है, लेकिन सामान्यता ये माना जाता है। तो आया कैसे? तो वो पारस में जरतुष्ट ने अपना परिचय दिया वहां गुरु बनने के बाद। हमारे गुरु का परिचय क्या है? हमारा 3 मिनट तक परिचय कराते रहे, उनका कितना किया होगा? तो पूछा गया तो उनको ये पता नहीं था कि परिचय क्या होता है, मैं आदमी तो हूं। तो फिर उन्होंने बताया, अपना ठिकाना बताया कि हमारे पूर्वज वो किर्गिस्तान से गए थे, लेकिन उनके पूर्वज सिंधु नदी के पास से वहां गए थे। तो वो उन्होंने बताया। तो सिंधु नदी के पास के हिंदू, तो हमारा गुरु हिंदू है, ऐसा उन्होंने कहना प्रारंभ किया। जो इस्राएल के व्यापारियों को पता चला, वो व्यापार करने हमारे पश्चिम किनारे पर आए और वहां उन्होंने हिंदू व्यापारियों को बताया कि आप लोग हिंदू हो। तब उनको पता चला कि हमें हिंदू भी कहा जाता है। ऐसा बाहर से आया शब्द है, लेकिन अभी चिपक गया है। लेकिन उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ कोई बंद चीज नहीं है, ये सदा परिवर्तनशील, अनुभव से बदलती है, लेकिन इसके शाश्वत तत्व है। और इसलिए एक बात और समझनी पड़ेगी, हिंदुत्व के नाम पर आज जो हम उसका अर्थ भूलकर करते, वो सब हिंदुत्व नहीं है। मन वचन कर्म से सात्विक उद्देश्य मन में लेकर, या कोई राजस स्वार्थ मन में लेकर, या कोई तमस शत्रुता मन में लेकर जो अतिवादी विधान होते हैं, जैसे धर्म संसद के बाद एक विधान बाहर आया, वो हिंदू वचन हिंदू कर्म हिंदू मन नहीं है। तैश में आकर एक आध बार अपना संतुलन खोकर मैंने भी कुछ बोल दिया तो वो मेरी गलती है, वो हिंदुत्व नहीं है। संघ या वास्तव में हिंदुत्व का पक्ष लेकर चलने वाले लोग इसको नहीं मानते। स्वयं सावरकर जी ने एक बार कहा है कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज संगठित, शस्त्र संपन्न और बल संपन्न जब हो जाएगा तो उसके बाद भी बात वो गीता की ही करेगा, दूसरे को समाप्त करने की नहीं करेगा। और इसलिए ऐसा असंतुलन हिंदुत्व नहीं है। संतुलन, विवेक, सबके साथ आत्मीयता मन में बात करना, युद्ध भी करना पड़े तो विगत ज्वर होकर युद्ध करना, यह हिंदू का स्वभाव है। उस स्वभाव का नाम हिंदुत्व है। हिंदुत्व हम लोगों ने पूजा में, रूढ़ी कुरीतियों में, खान पान रीति रिवाज में बंद किया है। हिंदुत्व को यह बंधन नहीं है। रिलीजन यानी धर्म नहीं है। धर्म एक बहुत विशाल कल्पना है। अपने देश में कोई हिंदू रिलीजन नहीं है। अपने देश में अनेक रिलीजन्स है, वो हिंदू स्वभाव के रिलीजन्स है, इसलिए वो हिंदू रिलीजन्स है। उनका अलग स्वतंत्र विशिष्ट अस्तित्व ये मान्य किया जाता है, लेकिन उन सबका स्वभाव यह है कि मेरा भी सही है, तुम्हारा भी सही है, अपने अपने तत्व पर श्रद्धा से चलो, मिलजुल कर चलो, तो कोई झगड़ा नहीं है। भारत से निकली हुई सारी विचारधारा है, आस्तिक हो, नास्तिक हो, जड़वादी हो, आध्यात्मिक हो, अपने अपने विचार की आग्रही है और अपने विचार में परस्पर विरोधी भी हो सकती है, परंतु असहिष्णु नहीं है, सर्व समावेशक है। और जो बात आपने कही कि दूसरों की बात सुनने के लिए धैर्य वगैरह लगता है, वो हिंदुत्व के कारण ही आता है। मैं भी उसी के कारण सुन सकता हूं, बात कर सकता हूं, क्योंकि हिंदुत्व कभी पूर्ण विराम नहीं मानता और हिंदुत्व किसी एक
खान पान रीति रिवाज पूजा कर्म में जकड़ा हुआ नहीं है, वो रिलीजन नहीं है, वो धारणा करने वाला नियम है जिसको धर्म कहते हैं। धर्म की यही व्याख्या है। धर्म जिसके सस्टेनेंस जिसको कहते हैं आजकल, सस्टेनेबिलिटी, तो धर्म सस्टेन करता है सारी सृष्टि के जीवन को, मानवों सहित, अनेक राष्ट्रों सहित, मेरे अपने जीवन सहित संपूर्ण सृष्टि के जीवन को एक साथ धारण करता है, एक साथ सबकी प्रगति करता है। शरीर मन बुद्धि के साथ आत्मा तक की यात्रा तीनों की एक साथ पूरी कराता है। व्यक्ति को, समाज को और सृष्टि को एक साथ सुखी करता है। विकास और पर्यावरण में झगड़ा नहीं मानता, समाज और व्यक्ति में संघर्ष नहीं मानता, किसी को दबाता नहीं, तीनों को एक साथ आगे बढ़ाता है। जो अर्थ और कामों को न नकारते हुए उनके उचित महत्व का निर्धारण अपने अनुशासन में करके मनुष्य के जीवन को मुक्ति की ओर बढ़ाता है, वो धर्म है, जिससे इस लोक में और परलोक में दोनों में सुख मिलता है। अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्धारण, ताकि सबका जीवन सुखी हो, जिन नियमों के, शाश्वत नियमों के आधार पर होता है, वो धर्म है। और उस धर्म के 4 पैर भागवत में बताए गए हैं, श्रीमद् भागवत में। मोहन भागवत ने नहीं बताए, श्रीमद् भागवत में बताए। वो 4 पैर है सत्य, करुणा, शुचिता और तपस्या। ये कभी नहीं बदलता। इस धर्म को आज हिंदू धर्म कहा जाता है। यह धर्म भारत से निकले सब विचारधाराओं ने बताया है। सत्य का सतत अनुसंधान करो, हम सत्य बताते उस पर चलो, ऐसा नहीं कहा। फेथ नहीं है, मैंने ऐसा अनुभूत किया है, तुम करके देखो, तुम्हारी अनुभूति तुम्हारे लिए। तुम जो कहते हो वो सत्य ही है, क्योंकि तुम्हारे अपने स्तर से, तुम्हारी अपनी क्षमता से तुमने वो अनुभूति पाई है। तुम मेरी अनुभूति नहीं पा सकते हो, मैं तुम्हारी नहीं पा सकता हूं, तुम्हारे लिए तुम्हारी सही है। तो उस सत्य का सतत अनुसंधान, और अंततोगत्वा सत्य यही बताता है कि अस्तित्व एक है। और इसलिए हम अलग अलग नहीं है, देह अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती है, आदतें अलग अलग हो सकती है, पूजा अलग, सब अलग हो सकता है। लेकिन ये सारी अलगता, ये अलगता नहीं, ये विविधता है, और वो एकता का ही आविष्कार है। विविधता में एकता, ऐसा हम कहते हैं, वास्तव में एकता की ही विविधताएं हैं। और इसलिए संवेदना होनी चाहिए। भौतिक दुनिया में चलना पड़ता है अलग अलग, लेकिन एक दूसरे के वास्तविक एकता का परिचय मन में रखकर चलो, यानी एक दूसरे के सुख दुख की संवेदना अपने मन में पालो। सबका सुख अपना सुख, सबका दुख अपना दुख। श्री ज्ञानेश्वर महाराज, उनको साक्षात्कार होने के बाद जो अभंग, जो अपना कवन लिखते हैं, उसमें वो कहते हैं, विश्वाचे आर्त माझा मनी प्रकाशले। हमको ईश्वर मिल गया, नहीं क्या हो गया, संपूर्ण विश्व की जो आरती है, वेदना है, और सुख भी एक प्रकार की वेदना ही है, पॉजिटिव वेदना है, ऐसा कहिए आप, वो मैं अपने अंदर महसूस करता हूं। उसके लिए जैसा पवित्र जीवन चाहिए अंतर्बाह्य, उसकी तपस्या करो, ये धर्म है। फिर उसमें आप भगवान कौन सा चुनते हो, आपकी बात है। उस धर्म में अमुक एक समय में अमुक देवता थे, आज दूसरे हैं, ये उस समय की बात है। देश काल परिस्थिति और व्यक्तिगत प्रकृति के अनुसार आचार धर्म बदलते रहता है। उसको चिपके रहना गलत है, समय के अनुसार बदलना चाहिए। जो भी आपका आचार धर्म होगा वो सत्य, करुणा, शुचिता और तपस्या, इनकी पुष्टि करने वाला हो तो धर्म है, नहीं तो वो अधर्म है। और धर्म से मुक्त तो कोई नहीं, धर्म से मुक्त तो कोई नहीं। शिबिराणा के पास कबूतर आया छुपने के लिए, शिबिराणा ने उसको छुपा लिया। बाद में एक बाज आया, उड़ते उड़ते कबूतर को ढूंढने लगा, कहाँ है, छुपाया है आपने? राजा ने कहा छिपाया है, मेरी प्रजा है,
उसकी जान बचाना मेरा धर्म है, तुमको मैं खाने नहीं दूंगा। राजा ने अपना धर्म बताया, लेकिन बाज भी अपना धर्म बताता है। प्रकृति ने मुझे यह धर्म दिया है, उसको मैं खाऊंगा। तुम मेरे धर्म की हानि करके अपना धर्म कैसे सीधा कर रहे हो? धर्म तो ऐसा नहीं है, वो सब जगह सुख लाता है, मुझे दुख देकर तुम धर्म नहीं कर सकते। और राजा कहता है कि बात तुम्हारी ठीक है, ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारे धर्म का भी पालन होना चाहिए। तुम्हारा धर्म क्या है? कबूतर खाना नहीं, तुम्हारा धर्म है मांस खाना। तो कबूतर को छोड़ दो, मैं अपना मांस तुमको देता हूं, मेरी इच्छा से देता हूं, मुझे सुख होता है उसमें, तुमको खाने में सुख होता है, कबूतर की जान बची उसका भी सुख, ये धर्म है। ऐसा ये धर्म है। सामान्य व्यक्ति की इसको पहचानने, निश्चित करने की ताकत नहीं होती, इसलिए समाज के बड़ी व्यक्ति जो लीक डालते उसमें वो चलता है। और इसलिए समाज के बड़े व्यक्तियों को आवश्यक है कि किसी भी कारण इस धर्म से च्युत न हो। न जातु कामान न भयान न लोभान धर्म त्यजेत जीवितस्यापि हेतु। क्योंकि धर्म नित्य है, धर्मो नित्य सुख दुखो शुभ नित्य, जीवो नित्यो हेतुरस्यत्व नित्य, वो धर्म है। उस सनातन शाश्वत धर्म को आज दुनिया हिंदू धर्म कहती है, हम भी हिंदू धर्म कहते हैं। वो किसी पूजा का विरोध नहीं, किसी पूजा को मिटाने वाला नहीं, किसी को गिलंकृत करने वाला नहीं है। अलग अलग मणियों को एक सूत्र में पिरोने वाले रस्सी के समान वो हम सबको जोड़ता है। उस धर्म के आचरण की हमारे यहां परंपरा बनाई, छोटे छोटे रिवाज, संस्कार किए, उसको हम कहते हैं संस्कृति। मेरा स्वभाव है, वैसे अपने समाज का एक स्वभाव है। कहीं पर भी जाओ, 100 आम खरीदोगे, पैसे दोगे, 100 के गिन के पैसे लेगा, 100 आम गिन के देगा, लेकिन 5 ऊपर से देगा। सब्जी बाजार में जाओ, खरीदो तो 2 जुड़ी धनिया की खरीदी आपने, 2 काड़ी और ऊपर से डाल देंगे। यह सारे भारत में है। जो अखंड भारत था पहले, उतने एरिया में है, काबुल जाबुल से चिंदविन तक, तिब्बत के उधर के उतार से श्रीलंका के दक्षिण तक, आपको सब जगह यह रिवाज मिलेगा। इस क्षेत्र में चलने वाली सब भाषाओं में उसके लिए शब्द है। अपने यहां पस्तूरी कहते हैं, तेलंगाना में कोसरू कहते हैं, और सब भाषाओं में शब्द है। अब ये कहां से आया, किस आचार्य का ये उपदेश है? मिलेगा आपको कोई? किसी ग्रंथ में लिखा है नियम? चाणक्य के अर्थशास्त्र में है? कहीं नहीं है। लेकिन ये परंपरा से आदत हमको मिलती आ रही है। ये संस्कार है हमारा, ये हमारी संस्कृति है, ये हमको जोड़ती है। हिंदुत्व इस संस्कृति का नाम है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु, यह उसका आदेश है। इस आचरण की ओर अपने जीवन की प्रगति करना, अपने जीवन का विकास करना, तो हम सुसंस्कृत कहे जाते हैं। हम सब लोग प्रकृत होते हैं, पशु भी प्रकृत होते हैं, लेकिन प्रकृति से विकृति को ओर नहीं जाना, प्रकृति से संस्कृति की ओर जाना। नर से नराधम नहीं बनना, नर का नारायण बनाना। ये जो यात्रा है, तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, उस यात्रा का नाम हिंदुत्व है। और संस्कृति कल्ट नहीं है। कल्ट फैशन होता है, उसका रीजन नहीं होता, उसका प्रश्न नहीं पूछते कोई, वो कल्ट है। आप उसमें शामिल हुए तो आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। संस्कृति ऐसी नहीं होती, उसके तत्व शाश्वत है, उसका रूप अलग अलग है, वेश बदलता है, घरों की रचना बदलती है, रास्ते बनाने की पद्धति बदलती है, वाहन सब कुछ बदलता है। यह ऊपर की बात है, सभ्यता वो उस युग के विज्ञान की प्रगति के अनुसार बदलती है। कभी वो बदल उपकारक होता है, कभी हानिकारक भी हो सकता है, लेकिन बदलता तो है। नहीं बदलता वो क्या है? पहले पशुओं की पूजा करते थे, गाय बैलों की, घोड़ों की,
आज ट्रैक्टर की भी पूजा करते हैं, कार की भी पूजा करते हैं, वाहन बदल गए, पूजा नहीं बदली। अपनी संस्कृति सर्वत्र पवित्रता देखती है, सर्वत्र कृतज्ञता व्यक्त करती है। यह नहीं बदला है, यह शाश्वत है, यह हमारा स्वभाव है। वो संस्कृति हम सबको जोड़ने वाली है और यह स्वभाव समाज का स्वभाव है। यह समाज शब्द भी जरा ध्यान पूर्वक उपयोग में लाना चाहिए। समान जन्मने वाले समाज नहीं होते, समज ऐसा नहीं है, वो सम अज है। इस समाज को दूसरा शब्द अपने यहां परंपरा में है जनपद। राष्ट्र के 7 अंग बताए चाणक्य ने। पहला है और मुख्य है और मूल है जनपदवती भूमि, यानी जनपद और उससे संबद्ध वो जनपद जिससे अपना संबंध मानता है वो भूमि। बाद में राज्य, कोश, बल, दुर्ग, अमात्य, सुहृद, ये सारी बातें हैं। आर्थिक बल, सामरिक बल, फोर्टिफिकेशन, सीमा का बंदोबस्त, अंतर्राष्ट्रीय राजनय में अपने दोस्त, उत्कृष्ट मंत्रिमंडल, नेता और इस सारे अस्तित्व का केंद्र बनकर सबको चलाने वाला राजा। पहले प्रजातंत्र नहीं था, तब राजा था, अब राज्य कहेंगे। लेकिन इसका मूल मुख्य क्या है राष्ट्रत्व का? जनपद। वो क्या होता है? जनपद वो होता है जिन जनों के सामने एक उद्देश्य होता है, समान उद्देश्य होता है, क्योंकि उनका एक समान अधिष्ठान होता है। जिस धर्म की चर्चा मैंने की, हमारे समाज का वो अधिष्ठान है, भारत के समाज का, भारत के संपूर्ण समाज का, आज के समाज का भी। यहां पर जो विदेश से आई विचारधाराएं, पूजाएं हैं, उनको मानने वालों सहित वो धर्म है। इंसानियत की बात करते हैं, वो इंसानियत ही धर्म है। सनातन धर्म यानी मानव धर्म ही है, मानवता ही है। हमारे समाज का वो अधिष्ठान है, उसके आधार पर सब बातें वो नापता है। अरे एका माणुसकी झाली का, कोई भी कहता है। अरे पैसा क्या खाएगा, मुर्गी भी नहीं खाती। ये भारत में सुनने को मिलेगा, अमेरिका में आपको नहीं सुनने को मिलेगा। ये हमारा स्वभाव है, वो हमारा समान अधिष्ठान है। और इसलिए हमने जो उद्दिष्ट निश्चित किया अपना, हमारे ऋषियों ने देखा कि अस्तित्व एक है, झगड़े का कोई कारण नहीं। उपासना करने वालों को अलग अलग दिखता है, उसकी बुद्धि उनके लिए कारण है, उनका अपना स्तर उसके लिए कारण है। इसको लेके भी झगड़ा करने की जरूरत नहीं। एकम सद विप्रहा बहुधा वदन्ति। तो उन्होंने कहा कि ये सबको पता चलना चाहिए कि सब हमारे ही है, एक ही आत्मा सब में है, हमारे आत्मीय है। तो उसके लिए प्रयास पूर्वक उन्होंने अपने समाज को खड़ा किया राष्ट्र रूप में। भद्रम इच्छन्त ऋषयस्वर विधा तपो दीक्षाम उपसे दुरद्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम। क्या महान उद्योग किया होगा उस समय के लोगों ने, उस अवस्था में। आज ये सारी घुमंती जातियां दिखती हमको। वो कौन है? उस समय के ज्ञान को सारे समाज में प्रसारित करते हुए समाज का एक संस्कार बनाने वाले, उसके लिए अपना घर स्वेच्छा से छोड़कर तरह तरह के उपक्रम हाथ में लेकर समाज में घूमने वाले, घुमंतु जीवन का स्वीकार जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के व्रतधारी होकर किया, वो ये हमारे सब घुमंतु लोग हैं। इसलिए वो स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे, इसलिए ब्रिटिशों ने उनको क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित किया। आज उनकी दुर्वस्था है, लेकिन वास्तव में इस दुर्वस्था के वो किसी भी प्रकार से यह सजा उनको नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि सारा जीवन उन्होंने समाज के भलाई के लिए लिया था। उस समय ऐसी कितनी टोलियां निकली होगी, कहां कहां गई होगी। ऐसा उद्यम करके ये राष्ट्र बना है प्राचीन समय से। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं है, आप मानो नहीं मानो वो है। और इसलिए राष्ट्रीय एकात्मता की जब बात आती है तो आप देखिए हमारी कल्पना क्या है। वो कल्पना नहीं कह रहा प्राचीन समय की, आज हमारी कल्पना क्या है।
हम यूनिफॉर्मिटी नहीं आवश्यक समझते, दुनिया समझती है। एक होना है तो एक सा होना पड़ेगा। हम कहते हैं एक सा होने की जरूरत नहीं, टू बी डिफरेंट इज नॉट टू बी सेपरेट। अलग होना, विविध होना है, अलग होना नहीं है। विविधता में एकता है, इसलिए दिखती है। उस एकता की ही हम आविष्कार है। एक स्वरूप कुछ कुछ हद तक किसी किसी मामले में आवश्यक रहता है, कभी कभी आवश्यक रहता है, तो अच्छा तरीका उसका दंड नहीं माना गया है, फोर्स नहीं माना गया है, प्रबोधन माना गया है। संस्कार से उन्नति करो। और इसलिए सात्वीकरण, इंटीग्रेशन, हमारे यहां संविधान का आदेश है, नेशनल इंटीग्रेशन। हम इंटीग्रेट करते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में हमारे राष्ट्रीय एकात्मता का सूत्र दिया है। वो हमारा संविधान का प्रस्ताव क्या कहता है? सामाजिक आर्थिक न्याय। क्यों हम ये देश बना रहे हैं? अपने आप को ये संविधान क्यों दे रहे हैं? सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यहां ये हिंदी में पढ़ रहा हूं, संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था, वहां धर्म शब्द नहीं है। फेथ एंड वर्शिप ऐसा कहा है। यहां एक विश्वास एडिशनल शब्द आ गया, धर्म और एक आ गया। तो उस धर्म का अर्थ वो नहीं है जो अभी तक मैंने बताया, और धर्म का अर्थ दूसरा नहीं है। ये शब्द यहां गलत है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन किस बात की स्वतंत्र? पूजा की स्वतंत्रता। मैं किस भगवान को मानता हूं मेरा विषय है, मानता हूं कि नहीं मानता हूं मेरा विश्वास है। फेथ एंड वर्शिप ये ठीक है, उसकी स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा व अवसर की समता, सबको प्रतिष्ठा है, ऊंच नीच नहीं है। और अवसर की समता है, सबको समान अवसर। अब ये हुआ, मैंने ऐसा सुना है, गलत होगा तो मेरे शब्द वापस, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि आगे के शब्द स्वर्गीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की कल्पना से इसमें डाले गए हैं। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाला बंधुभाव की वाली बंधुता। और डॉक्टर साहब कहते थे, डॉक्टर अंबेडकर साहब, कि बंधुभाव यही धर्म है। और संविधान सभा में संविधान प्रदत्त करते समय जो उनके दो प्रसिद्ध भाषण है, उसमें एक में उन्होंने कहा है कि बिना इसके हम टिकेंगे नहीं। अब ये बंधुभाव कैसे आता है? कानून से नहीं आता है, मानने से आता है। और आदमी क्यों मानेगा? मैं मान लूंगा, विजय बाबू मान लेंगे, हम मानते ही है, विचार अलग है तो भी। लेकिन सामान्य आदमी विचार अलग हो गया कि उसका स्वार्थ भी अलग हो जाता है, उसको अभ्यास नहीं रहता। 135 करोड़ के देश में हर सामान्य आदमी इसको मानेगा कैसे? कोई संबंध चाहिए, और वो संबंध है हम सब भारत माता के पुत्र हैं। हम भारत के नागरिक है कि नहीं है, लेकिन नागरिक एक कानूनन संबंध है। और कल तक जिसने भारत को ब्रिटिशों की सत्ता का वाहक बन के रौंदा, वो भी आज नागरिक बन के यहां रह सकता है। ये गुणात्मक नहीं है और ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये संवैधानिक है। संविधान चलते रहता है काल के साथ, क्या होगा पता नहीं। हम भारत के रहने वाले हैं, रहने वाले कोई भी होते हैं। आजकल रहना भी रेसिडेंट वीजा मिल गया तो एनआरआई तो है ही, नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं। ये संबंध है, मैं भारत माता का पुत्र हूं। वंदे मातरम ये पूजा का स्तवन नहीं है, ये भारत माता के साथ मेरा जो मातृवत संबंध है उसके भक्ति का गान है। वो संबंध हमको भारत का पुत्र बनाता है, और मैं भारत का पुत्र बनता हूं तो मैं भारत से अपेक्षा नहीं करता हूं। भारत की मेरे से क्या अपेक्षा है? आस्क नॉट व्हाट अमेरिका शैल डू फॉर यू, थिंक व्हाट यू शैल डू फॉर अमेरिका।
ऐसा केनेडी का वाक्य था। पुत्र और रेसिडेंट, इसमें फर्क होता है। वो अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो प्राणार्पण भी कर देता है, हंसते हंसते करता है, और अपनी माता को बताता है कि तुम रो मत, 9 महीने के बाद फिर आऊंगा, क्योंकि काम अधूरा है। माता को मुक्त करने के लिए माता को बताता है। ये भारत माता का पुत्रवत संबंध रखने वाला अपना समाज है। आप इस बात को छेड़ो, सारा समाज खड़ा हो जाएगा, सब भेद भूल कर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको हिंदू किसने बनाया? इस मातृभूमि ने बनाया। उस समय सीमा के अंदर कोई आ नहीं सकता, हिमालय पार करके कौन आएगा? और सागर में कौन सी नौका है जो उसको लाएगी यहां तक? कुछ नहीं था उस समय। अंदर सुजल सुफल मलय शीतल भूमि, सब कुछ है। और आई गए बाहर से तो आ जाओ भाई, बैठो। नहीं, हमारी भाषा अलग है, ऐसा अलग है, तो ये कौन सी बड़ी बात है? हमारे देश में तो ऐसा ही रहा है। ये कोई बहुत सारी बातें नहीं है ऐसी। हमारी कुर्म पुराण में है, भारतेषु स्त्रियः पुंसो नाना वर्ण प्रकृतिता नाना देवार्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। अब पुराणों का कम से कम 9वीं सदी का तो काल मानेंगे, 1200 साल तो हो ही गए। उसके भी पहले जाओ वेदों के काल में तो अथर्ववेद में है, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी अथौकसम। पृथ्वी इस शब्द का उपयोग तब किया जाता है अनेक बार संस्कृत में जब पृथु राजा की भूमि का उल्लेख होता है। एक जगह बताया भी है कि हिमालय से सागर पर्यंत पर्वतों से और सागर से विस्तृत भूमि को पृथ्वी कहा है, क्योंकि पृथ्वी राजा ने इसको कृषि योग्य बनाया, ऐसी मान्यता है। उसको पृथ्वी कहते हैं। उस पृथ्वी में अनेक भाषाओं के बोलने वाले, अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। तो प्राचीन समय से विविधता को साथ लेकर चलने की आदत हमको है। और 2 आ गए, क्या बिगड़ता है? सब बदलते रहता है, खान पान, रीति रिवाज, देवी देवता, सब कुछ। मिर्ची अपने यहां नहीं थी। जगन्नाथ जी के प्रसाद में भारत के बाहर से आई कोई वस्तु चलती नहीं। वहां आपको मिर्ची नहीं मिलेगी, काली मिर्च मिलेगी। वहां आपको गेहूं नहीं मिलेगा, वहां जौ मिलेगा। तो ये सब पहले नहीं थे, लेकिन आज आए, बिल्कुल सर्वमान्य है, अपने नित्य उपयोग की बात। तो ये सब बदलते रहता है, और इसलिए इस विविधता को साथ लेकर चलना हमारा पुराना है। लेकिन ये सब ऐसा होने के बाद भी हम लोग एक क्यों हैं? तो दूसरी बात है कि ये सब होने के बाद भी ये संस्कृति हमको जोड़ती है। भारतवर्ष को जानने वाले सबने कहा है, अध्ययन करने वाले, विंसेंट स्मिथ कहता है, इंडिया बियॉन्ड ऑल डाउट possesses a deep underlying fundamental unity far more profound than that produced by geographical isolation or by political superiority. That unity transcends the innumerable diversities of blood, color, language, dress, manners and sect. ये हमेशा हमारे यहां रहा है। वही हिंदुत्व है, उसी को हम हिंदुत्व कहते हैं, और वही अपरिवर्तनीय, बाकी सब बदलता है। आज हम किसी बात को हिंदुत्व कहेंगे, कल वो रहेगी कि नहीं इसका कोई भरोसा नहीं। हिंदू ही उसको भुला देंगे, लेकिन इन बातों को कभी कोई हिंदू भूलेगा नहीं, ना भुलाएगा। यह हमारी शाश्वत परंपरा, सनातन परंपरा है, उसी का नाम है। और इस परंपरा को फलाने फुलाने वाले, उसका संरक्षण करने वाले, उसके लिए पसीना बहाने वाले, खून देने वाले, प्राणदान करने वाले हमारे पूर्वजों को हमने आदर्श माना है। वो हमारे सबके आदर्श है। सब भाषा बोलने वाले, सब देवी देवताओं को मानने वाले, सब पूजाओं का प्रकार करने वाले, सबके आदर्श हमारे यहां समान है। भाषाएं अलग है, भाव जगत समान है। मुहावरे, कहावतें कि वैसी की वैसी दूसरे भाषाओं में मिलती है। ऐसा होता है क्योंकि ये हमारा भाव जगत समान है, उसमें हमारे गौरव के बिंदु समान है, हमारे आचरण के मानक समान है सर्वत्र। और इसलिए ये जो बंधुभाव हमारा आता है वो
ये जो तीन बातें, भारत भक्ति, संस्कृति और पूर्वज गौरव, इसको अगर आप मानकर चलेंगे, इसको अगर आप बोलते चलेंगे, तो कुछ लोग कहेंगे कि आप कम्युनल हो क्योंकि आप हिंदुत्व बोल रहे हो। सेक्युलर देश में, सेक्युलर कहां से आया भाई? सेक्युलर ये विदेशी वातावरण का शब्द है, हमको दिक्कत नहीं है सेक्युलर शब्द से, क्योंकि हमारे यहाँ यह परंपरा रही है, राज्य सेक्युलर है। अभी संविधान का जो प्रियम्बल मैंने पढ़ा, पुराना पढ़ा, उसमें वो शब्द है नहीं, बाद में आया, ठीक है, आने से कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि स्पिरिट तो वही है। जब इसको क्यों नहीं डाला, ऐसा संसद में चर्चा हुई संविधान देते समय, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि वो सुपरफ्लुअस होता है, हमारे यहाँ की परंपरा ही ऐसी है। लेकिन आप ये बात करेंगे ना तो आपको हिंदुत्ववादी कहा जाएगा, जैसे मुझे बुलाने के कारण इनको भी कभी कहा जाएगा, प्रणोदा को कहा गया, ऐसा होता है, क्योंकि यही है, दूसरा नहीं है। फिर कठिनाई कहां आती है? ये शाश्वत है, काल सुसंगत, दोनों को एक साथ चलाने वाला है, तर्क, विज्ञान और अनुभव से सिद्ध विचार है, किसी का विरोधी नहीं है, सबको साथ लेकर चलने वाला, सबको जोड़ने वाला विचार है। हमारे देश के आज विद्यमान 135 करोड़ नागरिकों को उनकी भाषा, भूषा, खानपान, पूजा, सब विविधताओं को स्वीकार करके, उनका सम्मान करते हुए, उनके विकास के पूर्ण अवसर देते हुए साथ चलाने वाला ये विचार है, उसको हिंदू विचार कहा जाता है, वो हिंदुत्व है। लेकिन जब अविवेक होता है उसके नाम पर, तो कुछ लोग बिगड़ते हैं ना, वो बिगड़ जाते हैं उन बातों पर स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वो इंसानियत नहीं है। और कुछ लोग उसका लाभ उठा के इस विचार को कम करने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं, विवाद के लिए कोई ना कहेगा तो कहेगा, लेकिन वास्तविक है कि अपने इस उभरते देश को तोड़ने की साजिशें चल रही है। अंग्रेजों ने बहुत बड़ी साजिश की, उसका आधार यही था, इनको इस अपने जोड़ने वाले सूत्र को भुला देना चाहिए, तब ये काली चमड़ी में गोरे अंग्रेज बनकर यहां रहेंगे, ये कहा गया है। वही खेल आज फिर से चल रहा है। अब हिंदुत्व ये राजनीति नहीं है, हिंदुत्व ये पूजा नहीं है, हिंदुत्व किसी प्रकार के अतिरेक में विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसका आधार धर्म है। तथागत ने कहा है कि वो पहले, बीच में, अंत में, सब समय, सर्वत्र सुखकारी ही होता है, जो नहीं होता वो अधर्म है। वो हमारी संस्कृति, वो हमारी पूर्वजों के आदर्शों का अनुसरण करने का स्वभाव, और वो हमारी मातृभूमि की भक्ति, इसको लेकर चलना ये हिंदुत्व है। लेकिन जब इसमें चाल बिगड़ जाती है, उसको बदनाम किया जाता है। अब बदनामी का उत्तर देना एक बात है, इतने प्रश्न पूछे गए, वास्तव में उन प्रश्नों का कोई मुझे अर्थ लगता नहीं। आंख खोल के घरों के बाहर आकर सब लोग संघ के अंदर आकर उसको अंदर से देखे, बिना बताए प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। उसके बाद भी पूछेंगे तो जानबूझकर पूछ रहे, बिगाड़ने वाले पूछते हैं और पत्रकारों को पूछना पड़ता है, वो पूछते हैं, बाकी कोई नहीं पूछता है। आज समाज तो नहीं पूछता है, लेकिन प्रश्न आते हैं तो उत्तर क्या है? प्रश्नों का उत्तर देना एक तरीका है, लेकिन मुझे अच्छा तरीका यह लगता है कि ऐसा आचरण खड़ा करना चाहिए। ये सारी बातें हैं, सत्य है, एक भी बात मैंने गलत नहीं बोली है, परंतु डॉक्टर अंबेडकर साहब का प्रश्न है कि आकाश को छूने वाला तत्वज्ञान हमारे पास है, और व्यवहार तो जमीन के नीचे कीड़े रहते, उसके भी नीचे जाकर व्यवहार करने वाले हैं। तो ये आचरण की आदत सुधार कर यह आचरण खड़ा करना यही उपाय है, क्योंकि अन्यथा वो जो संविधान में कहा गया बंधुभाव है, वो बंधुभाव उत्पन्न करने वाला दूसरा कुछ नहीं है। आज के अपनी देश की हालत देखिए,
सब अपने गुटीय स्वार्थ से खेल रहे हैं। राजनीति भी उसी की हो रही है। जब कोई परिचक्र आता है तब तो सब खड़े हो जाते हैं, फिर असली हिंदू जागृत होता है। असली हिंदू वो होता है जो उस समय दिखता है, लेकिन बाकी समय दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। शांति की अवस्था में, सामान्य अवस्था में, कोई परचक्र नहीं है, कोई आर्थिक संकट नहीं है, कुछ कोरोना वगैरह कुछ नहीं है, सब ठीक चल रहा है, उस समय हमको ऐसे रहना पड़ेगा भैया। अपनी सारी विविधताओं का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की बदलने की चेष्टा न करते हुए, अपने स्वार्थ के उल्लू सीधे करने के लिए आपस में भेद की बात न करते हुए, अपने अहंकार के कारण ऊंच नीच न देखते हुए, हम एक माता के जाए पूत है, एक समाज के घटक है। हमारा एक उद्देश्य है जो पूर्वजों ने दिया है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनाथ स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। ऐसा समन्वित जीवन, एक साथ सबकी उन्नति करने वाला जीवन जीना कैसे, इसका तरीका दुनिया को मालूम नहीं है। कोरोना के बाद फिर से विचार चल रहा है और हमारे तरफ लोग देख रहे हैं। हमारे पास उसकी कुंजी है, हमारे पास उस जीवन का 3000 साल सतत चला हुआ पुराना उदाहरण है। हमको अपने काल सुसंगत व्यवहार को खड़ा करके इस देश में अपनी वास्तविक एकता को लाना पड़ेगा। उसके लाते किसी को मिटने का धोखा नहीं है, खतरा नहीं है। सब रहेंगे, अपनी अपनी विशिष्टताओं सहित रहेंगे। अपनी गलत बातें सबको छोड़नी पड़ेगी, हमको भी छोड़नी पड़ेगी। गलत बातें सबको छोड़नी पड़ी। जो गलत है वो गलत है, और सही गलत क्या है? जो सबको सुखी करता है वो सही है, जो किसी को दुखी करता है वो गलत है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तप, शौच, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और संतोष। मुझे बताइए, भारत के किसी विचारधारा के आचरण के उपदेश में इससे अलग क्या है? और मुझे बताइए, भारत के किसी विचारधारा के प्रारंभ का अधिष्ठान अस्तित्व की एकता है कि नहीं है? ईश्वर मानने वाले हो न मानने वाले, एकता जड़ के संयोग से बनी कि चैतन्य के नाते अपने आप उभर कर आई, इसमें मतभेद है। लेकिन एकता है, उसी की विविधता है, इसमें किसी का मतभेद नहीं। तो इस बात को नकारते क्यों है? हिंदुत्व और राष्ट्रीय एकात्मता, यह शीर्षक गलत हो गया। हिंदुत्व यानी राष्ट्रीय एकात्मता, ऐसा शीर्षक होना चाहिए, क्योंकि वो हिंदुत्व किसी संप्रदाय को समाप्त करने वाला नहीं है, किसी संप्रदाय को मिटाने वाला नहीं है, सबको साथ रखकर ऊपर उठाने वाला है, बढ़ाने वाला है, अधिक परिष्कृत करने वाला है। वो हिंदुत्व किसी एक जाति के वर्चस्व की बात नहीं करता। जाति के वर्चस्व की बात ये विकृति है। इट शुड गो आउट लॉक, स्टॉक एंड बैरल। असली हिंदुत्व का अनुसरण करके उसका पूर्ण निर्मूलन हो सकता है। अनेक संतों के उदाहरण है, उनके व्यवहार ऐसा था, उनका जीवन ऐसा था। समाज में ये आचरण का परिवर्तन लाना आवश्यक है। हिंदुत्व पर कपोल कल्पित आक्षेप उठाने के बजाय सही हिंदुत्व का आचरण हम करें। हिंदुत्व का नाम नहीं लिया तो भी चलेगा, लेकिन इसी आचरण का हम पुरस्कार करें। हिंदुत्व को यह भी चिंता नहीं है, हिंदुत्व नाम पहले नहीं था। कंटेंट, हिंदू शब्द का आग्रह क्यों है? भारत से पूरा कंटेंट नहीं आता, एक भूगोल से जुड़ जाता है और वो भूगोल बदलते रहता है। आर्य कहने के बाद अनार्यों का क्या, ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है। कुछ भी कहो, उसकी एक मर्यादा है उस शब्द की। उसका जो आशय है वो वैसा का वैसा व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है हिंदू। लेकिन वो भी कल रहा नहीं, और ये आशय रहा, और ये आचरण फला फूला पनपा। तो सबसे अधिक आनंदित कौन होंगे? जो आज हिंदू शब्द का आग्रह पकड़ के काम करते वही होंगे। किसके मुर्गे के बांग देने से सुबह हुई, इसका प्रश्न हमारे मन में नहीं है। सुबह होनी चाहिए, यह हमारा कहना है। और इसलिए इस आशय को मन में रखकर अपना संविधान बना है। ऐसा क्यों बना है?
प्रणोदा राष्ट्रपति थे, पहली बार मैं मिलने के लिए गया, अपॉइंटमेंट मिल गई और 15 दिन पहले प्रणोदा को हार्ट अटैक आया, एडमिट हुए 8 दिन, फिर वापस आने के बाद सारी अपॉइंटमेंट कैंसल। तो हमारी अपॉइंटमेंट कैंसल हुई ये कंफर्म करने के लिए, क्योंकि फिर उस दिन दिल्ली जाने का काम नहीं, दूसरी जगह जा सकता हूं, इसलिए फोन किया। तो पता चला कि हमारी केवल रखी है, तो हम गए। अब उसी समय संसद में घर वापसी के लिए हो हल्ला चल रहा, हम बड़ी तैयारी करके गए थे, इस भाषण से भी ज्यादा तैयारी की मैंने उत्तर देने की, लेकिन हमको उत्तर ही नहीं देना पड़ा। प्रणोदा ने पहले तो हमको थोड़ा सा डांटा कि क्या लोग आप है, क्या कर लिया आपने, 4 लोगों की इधर वापस क्या लाया, हो हल्ला, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। 300 साल से मिशनरी कर रहा है, किसी के कान पर जू नहीं रेंगती, और आप एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे। लो अब नतीजा कैसे हो हल्ला हो रहा है। ये तो पॉलिटिक्स है, ऐसे ही होगा। मैं भी आज कांग्रेस में रहता, मैं यही करता। फिर आवाज थोड़ा नरम करके बोले, लेकिन आप लोगों के द्वारा घर वापसी का काम नहीं होता तो देश का 30% समाज, तो हमको बड़ा आनंद हुआ कि हमारे लाइन पर आ रहे। हमने कहा क्रिश्चियन होता, फिर क्रिश्चियन नहीं होता, क्रिश्चियन हुए तो कोई राष्ट्र से कट जाता। उन्होंने कहा कि क्या धर्मनिरपेक्षता की बातें, हमको अमेरिका बोल रही, हमारे देश को। अरे दुनिया में सबसे ज्यादा सेक्युलर हमारा संविधान है। फिर 1 सेकंड रुके और फिर उन्होंने कहा कि लेकिन संविधान है तब से हम सेक्युलर है, ऐसा नहीं है। हमारे संविधान बनाने वाले सब लोग सेक्युलर माइंडसेट के थे, इसलिए तो संविधान ऐसा बना। फिर 1 सेकंड रुके, फिर उन्होंने कहा, और वो कोई पहले नहीं थे सेक्युलर माइंडसेट वाले हमारे देश में। 5000 वर्षों की हमारी परंपरा के संस्कार सेक्युलर है। प्रणोदा होते और आप उनको पूछते तो वो डिनाई नहीं करते, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन मेरा हुआ। तो 5000 वर्षों की सेक्युलर परंपरा अपनी कौन सी है, उसको दुनिया के सामने रखेंगे, दुनिया उसको नाम क्या देगी। हमको जरूरत नहीं नाम की, दुनिया को है, वो क्या कहेगी, हिंदू। हमारे संविधान में जो मनोभाव प्रकट हुआ है, जो स्वभाव प्रकट हुआ है, वही हिंदुत्व है। हमारे संविधान में जो प्रकट हुआ है वो हिंदुत्व के कारण प्रकट हुआ है। इस देश में हिंदुत्व पर बड़ी कड़ी और कटु टीका टिप्पणी करते हुए जो कुछ प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से करने का प्रयास हुआ है या किया गया है, वो हिंदू समाज में सुधार के लिए किया गया है। अपने आप को हिंदू कहलाने वालों को यह समझना पड़ेगा, अपना इस स्तर का आचरण खड़ा करना पड़ेगा। तो जिनको नहीं कहना है उनका मन बदल जाएगा, और जो भूल गए उनको याद आ जाएगा। क्योंकि है तो हम ये सब ऐसे है। जैसे मुझे जो जन्म मिला उसको मैं नहीं बदल सकता, वैसे हम जो है उसको हम नहीं बदल सकते। और हमको जो होना है वो उसी के आधार पर हम कुछ हो सकते हैं। जो हम नहीं है वैसे हम हो नहीं सकते। जो हम है उसमें ऊंचा सा ऊंचा क्या हो सकता है वो हम हो सकते हैं। हमको वो होना चाहिए, क्योंकि वो बात ऐसी है, वो हम सबको तो जोड़ती ही है, लेकिन अपने जोड़ने के स्वभाव के कारण संपूर्ण पृथ्वी को एक घर बना सकती है, वसुधैव कुटुंबकम तक जा सकती है। तो संपूर्ण विश्व को धर्म देने वाला, संतुलन देने वाला, सब्र देने वाला, सारे विरोधाभासों को एक साथ चलाते हुए सबकी उन्नति साधने वाला, सुख शांतिपूर्ण नया जग बनाना है, नई दुनिया बनानी है, तो दूसरा उपाय नहीं। और वो देना भारत का काम है, उसके लिए भारत को खड़ा करना है। हम समझे कि अपने स्वभाव के दृष्टि से ही अपने आदेश संविधान में हमने पाए हैं। अपने उस स्वभाव पर रहकर ही हम अपने समाज की एकात्मता साकार कर सकते हैं। वो साकार करने के लिए अपना अपना काम करे, अपने विचार से चले, लेकिन बिना कारण इस विवाद में न पड़ते हुए आशय समझ कर चले। जिनकी मति बिगड़ी है, चाल बिगड़ी है, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे। समाज से जिस बात का प्रतिसाद मिलता है उस बात को करने की बात चलती है,
अप्रिय पथ्यकर करने की तैयारी नहीं है। सत्य बोलने वाला, अप्रिय बोलने वाला, पथ्यकर बोलने वाला वो आवश्यक है, वैसा चलने वाला करने वाला आवश्यक है। वैसा हम सबको समझदार लोगों को होना पड़ेगा, तो महाजनों येन गतस्स पंथा, समाज का भी आचरण बदलेगा और ये एकात्मता सधेगी। मैं हिंदुत्व और राष्ट्र की एकात्मता में कोई विरोध देखता नहीं हूं, और जितना मैंने आज तक काम किया है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव और संघ का सामूहिक अनुभव यह है कि कहीं पर भी हमने लोगों को तोड़ा नहीं है। जहां टूटा है वहां जोड़ने का ही प्रयास हमने किया है, और जहां जुड़ा है वहां हमने कभी टूटने नहीं दिया है, क्योंकि हम इस हिंदुत्व को लेकर चलते हैं। मुझे यहाँ बुलाया, अपने विचार रखने का अवसर दिया, सुन लिया। आप विचार करेंगे ये विश्वास मन में है। आपको धन्यवाद देता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर मोहन जी भागवत साहब। पिछला 1 घंटा ऐसे निकल गया मानो हम सब सम्मोहित थे आपकी वाणी से। ऐसा लग रहा था कि ये बात खत्म ना हो, चलती ही रहे अनवरत। आपने बहुत अच्छी व्याख्या की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए लोकमत के कार्यकारी संपादक श्री श्रीमंत माने जी को आमंत्रित कर रहा हूं। लोकमतच्या नागपूर आवृत्तीच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक आदरणीय डॉक्टर मोहनजी भागवत साहेब यांचं आपण हिंदुत्व आणि राष्ट्रीय एकात्मता या विषयावरचं अत्यंत अर्थपूर्ण आणि या दोन्ही संकल्पनांचे अनेक पैलू उलगडून दाखवणारं अशा पद्धतीचं एक सुंदर व्याख्यान या ठिकाणी आपण ऐकलं। त्यांनी जरी सांगितलं की मी कुठल्याही प्रश्नाची उत्तरं देणार नाही, आपल्याकडे रूपक अलंकार आहे, रूपकाच्या स्वरूपात आपा सगळ्यांना आपली उत्तरं सगळी मिळालेली आहेत असं मी समजतो। अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमातून या व्याख्यानासाठी वेळ काढल्याबद्दल मी आदरणीय मोहनजींचं या ठिकाणी मनापासून लोकमत परिवाराच्या वतीनं आभार मानतो। आमचे चेअरमन, आमचे कुटुंब प्रमुख आदरणीय विजयबाबू, मंचावर माझ्यासोबत उपस्थित असलेले आमचे संचालक परिचालन आदरणीय अशोकबाबू, माझे ज्येष्ठ सहकारी लोकमत समाचारचे संपादक आदरणीय विकासजी मिश्र, लोकमत टाइम्सचे संपादक आदरणीय नायक साहेब, माझे सहकारी निलेश सिंगजी, या ठिकाणी उपस्थित असलेले हा कार्यक्रम आपण कोरोनाच्या संकट काळात घेतो आहोत आणि त्यामुळं या कार्यक्रमाच्या आयोजनावरती जे निर्बंध आहेत त्या अनुषंगाने आम्ही प्रयत्न केला, आम्ही खूप चाळणी करायचा प्रयत्न केला की उपस्थितीमध्ये ती मर्यादित त्या निर्बंधांच्या कक्षेमध्ये असावी। या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर विशेषतः दीप प्रज्वलन आणि आदरणीय बाबूजींच्या प्रतिमा पूजनासाठी उपस्थित असलेले आदरणीय सिरपूरकर साहेब, शहराचे प्रथम नागरिक दयाशंकरजी तिवारी आणि या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, मी मनापासून आपल्या सगळ्यांचा आभारी आहे। लोकमतच्या सुवर्ण महोत्सवाच्या निमित्तानं हा दुसरा जाहीर कार्यक्रम आहे। याच्या अगोदर आदरणीय विजयबाबूंनी उल्लेख केला त्याप्रमाणे आपण 24 ऑक्टोबरला आपण आंतरधर्मीय परिषद घेतलेली होती। यानंतर असेच कार्यक्रम या सुवर्ण महोत्सवाच्या निमित्तानं होत राहतील। मी आपल्या सगळ्यांना या पुढच्या कार्यक्रमासाठी पण आत्ताच निमंत्रण देतो। या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिल्याबद्दल आदरणीय मोहनजी भागवत साहेब आणि आपल्या सगळ्यांचा मनापासून आभार मानतो। आणि थोडं हिंदीमध्ये कृपया कोई भी भोजन किए बिना न जाए। थैंक यू। कार्यक्रम अपने अंतिम कड़ी में पहुंच चुका है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं राष्ट्रगान के लिए आप सबको आमंत्रित करता हूं कि अपने स्थान पर कृपया खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा,
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रात्रि भोज पर आप सम्मान आमंत्रित हैं, जरूर रात्रि भोज लेकर ही जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।